السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے ریئل ہیلتھ کیئر ان اردو۔ میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کچھ ایسی باتیں جو کہ آپ نہیں جانتے چکن برائلر کے متعلق۔ تو یہاں پہ آپ اس کا تھمبنیل پڑھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹائٹل پڑھ سکتے ہیں، چکن برائلر کھانے کے ایسے نقصانات جو آپ نہیں جانتے۔ تو دوستو، آج کل ہر بندہ جو ہے وہ چکن کھانے پہ لگا ہوا ہے، خواہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، سارے لوگ چکن کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اور آج کل دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کس طرح کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ حالانکہ اگر ہم 50 سال پیچھے جائیں تو جو بیماریاں آج کل ہیں وہ پہلے نہیں تھیں۔ پہلے بلڈ پریشر کا جو مرض تھا وہ نہیں تھا، شوگر کا مرض نہیں تھا، اس طرح کئی ایک بیماریاں ہیں، ٹینشن، ڈپریشن، اس طرح کے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آج سے 50 60 سال یا 100 سال ہم پیچھے چلے جائیں تو یہ چیزیں نہیں تھیں۔ تو دراصل یہ کس طرح سے یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں دوستو، یہ ہمارے عادات و اطوار اور ہماری غذا جس طرح کی ہوتی ہے اسی طرح سے ہماری جو عادات بنتی ہیں، اسی طرح سے ہی آگے ہمارے جسم کی گروتھ ہوتی ہے، اسی طرح سے ہی پھر ہمیں صحت ملتی ہے یا ہمیں مرض ملتا ہے۔ جو بھی غذا ہم کھاتے ہیں یا وہ ہمیں صحت دیتی ہے یا وہ ہمیں مرض دیتی ہے۔ تو دوستو، بہرحال لمبی بات کرنے کے بجائے آتے ہیں ٹاپک کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں چکن برائلر کھانے کے ایسے نقصانات جو آپ نہیں جانتے۔ دوستو، چکن آج کل امیر غریب چھوٹے بڑے سب کی تقریباً پسندیدہ غذا ہے۔ تقریباً 20-25 سال سے ہی اس کا رواج بڑھا ہے، یعنی 20-25 سال سے پہلے جو اس کا استعمال تھا، اس کا استعمال کیا یہ تھی نہیں تو پھر اس کا استعمال کہاں سے ہونا؟ لوگ دیسی مرغ کو استعمال کیا کرتے تھے یا بکرے کا گوشت استعمال کیا کرتے تھے جس کو آپ مٹن کہتے ہیں، اسی طرح سے بیف کا گوشت استعمال کیا کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں وہ نیچرل جو چیزیں تھیں وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ جو آرٹیفیشل چکن ہے یہ اس وقت تھا ہی نہیں تو وہ لوگ کھاتے ہی نہیں تھے۔ جب وہ اس کو کھاتے نہیں تھے تو وہ بیماریوں کا شکار نہیں تھے۔ بہرحال اصل میں یہ مرغ نہیں ہے بلکہ چوزے یعنی چکس ہیں۔ یہ جو چوزے ہوتے ہیں ان کو چکس کہا جاتا ہے، اس لیے ان کے گوشت کو چکن کہا جاتا ہے۔ چوزے کا جو گوشت ہوتا ہے یعنی کہ جو مرغی کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسے چکس، ان کو چکس کہا جاتا ہے اور ان کے گوشت کو چکن کہا جاتا ہے۔ مرغ کو تو ہین یا کاک کہا جاتا ہے۔ اس چکن کی افزائش پہ یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ اس کا نام ہی کتنا غلط ہے کہ یہ چوزا دراصل ہوتا ہے، اور اس کو اتنے اسٹیرائڈز کھلا کے اتنی جلدی اس کی افزائش اس کے جسم کو بڑھا دیا جاتا ہے کہ یہ 2-3 مہینے کے اندر اپنا یہ فیٹ بڑھا لیتا ہے۔ بہرحال اس چکن کی افزائش پہ یعنی کہ اس کی گروتھ پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک فارمی چوزا صرف 1.5-2 ماہ میں مکمل مرغی کے سائز کا ہو جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ جبکہ دیسی چوزا تو 6 ماہ میں مرغی جیسا ہوتا ہے، مکمل مرغی تو وہ سال بھر میں بنتا ہے۔ اس فارمی چوزے کو جو غذا دی جاتی ہے اس میں ایسے ہارمونز یعنی اسٹیرائڈز اور کیمیکل ڈالے جاتے ہیں جو اس کی افزائش کو غیر فطری طور پر بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی فیڈ میں مختلف جانوروں کا خون جو مذبح خانوں یعنی سلاٹر ہاؤسز سے مل جاتا ہے، بآسانی مل جاتا ہے۔ جانوروں کی آلائش یعنی کہ یہ جو جانوروں کے جو فضلات ہوتے ہیں، یہ جو مرے ہوئے جانور ہوتے ہیں ان کے جو گند بلاں، جو ان کا بالکل سمجھ لیں کہ جو بیکار چیزیں ہیں، جو مردہ حالت میں جو ایک گند بن جاتا ہے، وہ سارے مردار جو جانور ہیں ان کی آلائشیں، مردار جانوروں کا گوشت اس فیڈ میں شامل کیے جاتے ہیں جو اس چکن کو کھلایا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل ایک نجی ٹی وی چینل نے لاہور کے مذبح خانوں پر ایک دستاویزی فلم پیش کی تھی، یعنی ایک ڈاکومنٹری بنا کے دکھائی تھی جس میں ان فارمی مرغیوں کی خوراک کے بارے میں بھی دکھایا گیا تھا۔ اس خوراک کا بیشتر حصہ یعنی زیادہ تر حصہ آنتیں اور دیگر فضلات پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ فیڈ کھا کر یہ نومولود چوزے 6 سے 8 ہفتوں میں ہمارے پیٹ میں پہنچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ چوزے بڑے ہونے کے باوجود چلنے پھرنے، بھاگنے، دوڑنے اور اڑنے سے قاصر ہوتے ہیں، یعنی اڑ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، دوڑ نہیں سکتے۔ یہ کام خود سے نہیں کر سکتے تو ان کو کھا کے ہم کیا چل پائیں گے، دوڑ پائیں گے، ہم کیسے اپنے آپ کو فٹ رکھ پائیں گے؟ کیونکہ ان کا جسم پھولا اور سوجا ہوا ہوتا ہے جو کہ اسٹیرائڈز کا کمال ہوتا ہے۔ اکثر باڈی بلڈرز اسٹیرائڈز کا استعمال کرتے ہیں جس سے وقتی طور پر ان کا جسم پھول جاتا ہے، لیکن ان باڈی بلڈرز کی زندگی جو اسٹیرائڈز کا استعمال کرتے ہیں ہسپتالوں کے بستروں پر گزرتی ہے۔
फार्मी मुर्गी के मुकाबले में देसी चूज़ा जो कि 6 से 8 महीनों तक चूज़ा ही रहता है, इसको पकड़ना चाहें तो बड़े आदमी को भी दांतों पसीना आ जाता है, जबकि फार्मी मुर्गी को तो एक बच्चा भी आसानी से पकड़ लेता है। ये फार्मी चिकन हमारे माशरे में हाई प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल फ्री गोश्त के नाम से रिवाज दिया गया है। हत्ता कि डॉक्टर हजरात सारे गोश्त बंद करके फार्मी चिकन ही तजवीज़ करते हैं, जो कि ख़ुद बीमारियों का एक हस्पताल है। वैसे तो आजकल की फार्मी ग़ज़ाएँ ही बहुत सारी बीमारियों का सबब बनती हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जो कि सिर्फ़ इस फार्मी चिकन की बदौलत ही हमारी ज़िंदगियों को तबाह कर रही हैं। नंबर 1, ये जो चिकन ब्रायलर खाते हैं इनको मोटापा हो जाता है। फार्मी चिकन का बेजा इस्तेमाल हमारे जिस्म में फ़ैट बढ़ाता है, यानी हमारे जिस्म में चर्बी बढ़ाकर हमें मोटा बना देता है, जिससे शुगर, ब्लड प्रेशर, जिगर पर फैट, गुर्दों पर फैट आकर मुख्तलिफ अमराज पैदा हो जाते हैं। नंबर 2, जोड़ों का दर्द। फार्मी चिकन का इस्तेमाल जोड़ों का दर्द पैदा करता है और हमारी हड्डियों को भुरभुरा कर देता है, कमज़ोर कर देता है। नंबर 3, फार्मी चिकन आजकल हमारे बच्चों को बहुत जल्द बालिग बना देता है। अब ये बहुत अफसोस की बात है कि जैसी ग़ज़ा हम खाएंगे वैसे ही असरात हमारे जिस्म पर मुरतब होंगे। जो लोग सूर का गोश्त खाते हैं तो आपने देखा होगा कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ में जो लोग सूर के गोश्त को खाते हैं तो उससे होता ये कि उनकी ज़िंदगियां भी सूर जैसी हो जाती हैं। और यहाँ पे आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूँ कि सूर की जो मादा होती है उसी के सामने उसके साथ कोई और सूर जिनसी फेल कर रहा हो, सेक्स कर रहा हो, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक तरह से बेशर्म और बेगैरत जानवर होता है सूर। तो इसी के सामने इसी की मादा को जिनसी तस्कीन का कोई और निशाना बनाता है सूर, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने देखा होगा कि मगरबी माशरे में, यूरोपियन कंट्रीज़ में एक बंदे की जो बीवी है वो दूसरे के साथ रंग रलियाँ मना रही होती है, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो बहरहाल फार्मी चिकन जो है अगर हम ये खाएंगे तो इसके असरात हमारे जिस्म पर भी मुरतब होंगे, ज़ाहिर होंगे। हमारे बच्चे आजकल बहुत जल्द बालिग हो रहे हैं, बहुत जल्दी बलूगत की दुनिया में कदम रख देते हैं। क्यों? यही ग़ज़ा की वजह से, जिसकी वजह से लड़के और लड़कियां 95% मुश्तज़नी का शिकार होकर मुख्तलिफ बीमारियों का ढेर बन जाते हैं। अब एक बच्चा 7-8 साल की, 9 साल की उम्र से ही वो बालिग हो गया है, तो किस तरह उसकी शादी का सामान पैदा किया जाए, वो अपनी जिनसी तस्कीन, अपनी जिनसी ज़रूरत को कैसे पूरा करे, तो वो फिर मुश्तज़नी करता है, फिर वो अपने आप को इतनी तबाहकुन बीमारियों में मुब्तला कर लेता है जिसका इज़ाला नामुमकिन तो नहीं, बहरहाल मुश्किल ज़रूर हो जाता है। नंबर 4, स्टीरॉइड्स। फार्मी मुर्गियों का गोश्त खाने से जिस्म का मुदाफ़ियाती निज़ाम शदीद कमज़ोर पड़ जाता है, जिससे इंसान बहुत जल्द बीमार होने लगता है। नंबर 5, इन फार्मी मुर्गियों का गोश्त खाने से मर्दों में मर्दाना कमज़ोरी और सूरत अंजाल यानी टाइमिंग की कमी का मसला जैसे अमराज, और औरतों में पीरियड्स की बेकायदगी के अमराज पैदा हो जाते हैं। ये बहुत तशवीशनाक बात है। ये चंद ऐसी बीमारियां हैं जो किसी में जल्दी और किसी में देर से फार्मी चिकन खाने से पैदा हो जाती हैं। लिहाजा सिर्फ ज़बान के मज़े की खातिर अपनी सेहत को दाव पर मत लगाइए और कुदरती चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। ग़ज़ा सादा और ज़ूद हज़म इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। उनके जो गंद बला, जो उनका बिल्कुल समझ लें कि जो बेकार चीज़ें हैं, जो मुर्दा हालत में जो एक गंद बन जाता है, वो सारे मुर्दार जो जानवर हैं उनकी आलाइशें, मुर्दार जानवरों का गोश्त इस फीड में शामिल किए जाते हैं जो इस चिकन को खिलाया जाता है। कुछ अर्सा कबल एक निजी टीवी चैनल ने लाहौर के मस्बा खानों पर एक दस्तावेज़ी फ़िल्म पेश की थी, यानी एक डॉक्यूमेंट्री बना के दिखाई थी, जिसमें इन फार्मी मुर्गियों की खुराक के बारे में भी दिखाया गया था। इस खुराक का बेशतर हिस्सा यानी ज़्यादातर हिस्सा आंतें और दीगर फजलात पर मुश्तमिल होता है। ये फीड खाकर ये नौ मौलूद चूज़े 6 से 8 हफ्तों में हमारे पेट में पहुंचने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि चूज़े बड़े होने के बावजूद चलने फिरने, भागने, दौड़ने और उड़ने से कासिर होते हैं, यानी उड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते। ये काम खुद से नहीं कर सकते, तो इनको खा के हम क्या चल पाएंगे, दौड़ पाएंगे, हम कैसे अपने आप को फिट रख पाएंगे, क्योंकि इनका जिस्म फूला और सूजा हुआ होता है, जो कि स्टेरॉइड्स का कमाल होता है। अक्सर बॉडी बिल्डर्स स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वक्ती तौर पर
इनका जिस्म फूल जाता है, लेकिन इन बॉडी बिल्डर्स की ज़िंदगी जो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं हस्पतालों के बिस्तरों पर गुजरती है। फार्मी मुर्गी के मुकाबले में देसी चूज़ा, जो कि 6 से 8 महीनों तक चूज़ा ही रहता है, इसको पकड़ना चाहें तो बड़े आदमी को भी दांतों पसीना आ जाता है, जबकि फार्मी मुर्गी को तो एक बच्चा भी आसानी से पकड़ लेता है। ये फार्मी चिकन हमारे माशरे में हाई प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल फ्री गोश्त के नाम से रिवाज दिया गया है। हत्ता कि डॉक्टर हजरात सारे गोश्त बंद करके फार्मी चिकन ही तजवीज़ करते हैं, जो कि ख़ुद बीमारियों का एक हस्पताल है। वैसे तो आजकल की फार्मी ग़ज़ाएँ ही बहुत सारी बीमारियों का सबब बनती हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जो कि सिर्फ़ इस फार्मी चिकन की बदौलत ही हमारी ज़िंदगियों को तबाह कर रही हैं। नंबर 1, ये जो चिकन ब्रायलर खाते हैं इनको मोटापा हो जाता है। फार्मी चिकन का बेजा इस्तेमाल हमारे जिस्म में फ़ैट बढ़ाता है, यानी हमारे जिस्म में चर्बी बढ़ाकर हमें मोटा बना देता है, जिससे शुगर, ब्लड प्रेशर, जिगर पर फैट, गुर्दों पर फैट आकर मुख्तलिफ अमराज पैदा हो जाते हैं। नंबर 2, जोड़ों का दर्द। फार्मी चिकन का इस्तेमाल जोड़ों का दर्द पैदा करता है और हमारी हड्डियों को भुरभुरा कर देता है, कमज़ोर कर देता है। नंबर 3, फार्मी चिकन आजकल हमारे बच्चों को बहुत जल्द बालिग बना देता है। अब ये बहुत अफसोस की बात है कि जैसी ग़ज़ा हम खाएंगे उसी तरह से ही आगे हमारे जिस्म की ग्रोथ होती है, उसी तरह से ही फिर हमें सेहत मिलती है या हमें मर्ज़ मिलता है। जो भी ग़ज़ा हम खाते हैं या वो हमें सेहत देती है या वो हमें मर्ज़ देती है। तो दोस्तों, बहरहाल लंबी बात करने के बजाय आते हैं टॉपिक की जानिब और आपको बताते हैं चिकन ब्रायलर खाने के ऐसे नुकसान जो आप नहीं जानते। दोस्तों, चिकन आजकल अमीर, गरीब, छोटे बड़े सब की तकरीबन पसंदीदा ग़ज़ा है। तकरीबन 20-25 साल से ही इसका रिवाज बढ़ा है, यानी 20-25 साल से पहले जो इसका इस्तेमाल था, इसका इस्तेमाल क्या ये थी नहीं तो फिर इसका इस्तेमाल कहाँ से होना। लोग देसी मुर्ग को इस्तेमाल किया करते थे या बकरे का गोश्त इस्तेमाल किया करते थे, जिसको आप मटन कहते हैं। इसी तरह से बीफ का गोश्त इस्तेमाल किया करते थे। तो ये चीज़ें, वो नेचुरल जो चीज़ें थी वो इस्तेमाल किया करते थे। ये जो आर्टिफिशियल चिकन है ये उस वक़्त था ही नहीं, तो वो लोग खाते ही नहीं थे। जब वो इसको खाते नहीं थे तो वो बीमारियों का शिकार नहीं थे। बहरहाल असल में ये मुर्ग नहीं है बल्कि चूज़े यानी चिक्स हैं। ये जो चूज़े होते हैं इनको चिक्स कहा जाता है, इसलिए इनके गोश्त को चिकन कहा जाता है। चूज़े का जो गोश्त होता है यानी कि जो मुर्गी का छोटा बच्चा होता है उसे चिक्स, उनको चिक्स कहा जाता है और उनके गोश्त को चिकन कहा जाता है। मुर्ग को तो हैन या कॉक कहा जाता है। इस चिकन की अफजाइश पे, यानी कि आप देख लें कि इसका नाम ही कितना गलत है कि ये चूज़ा दरअसल होता है और इसको इतने स्टेरॉइड्स खिला के इतनी जल्दी इसकी अफजाइश, इसके जिस्म को बढ़ा दिया जाता है कि ये 2-3 महीने के अंदर अपना ये फ़ैट बढ़ा लेता है। बहरहाल इस चिकन की अफजाइश पे यानी कि इसकी ग्रोथ पे अगर हम नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि एक फार्मी चूज़ा सिर्फ 1.5-2 माह में मुकम्मल मुर्गी के साइज़ का हो जाता है। आखिर क्यों, जबकि देसी चूज़ा तो 6 माह में मुर्गी जैसा होता है। मुकम्मल मुर्गी तो वो साल भर में बनता है। इस फार्मी चूज़े को जो ग़ज़ा दी जाती है इसमें ऐसे हार्मोन्स यानी स्टेरॉइड्स और केमिकल डाले जाते हैं जो उसकी अफजाइश को गैर फितरी तौर पर बढ़ा देते हैं। इसके अलावा इनकी फीड में मुख्तलिफ जानवरों का खून जो मज़बा खानों यानी स्लॉटर हाउसेस से मिल जाता है, बआसानी मिल जाता है। जानवरों की आलाइश यानी कि ये जो जानवरों के जो फुजलात होते हैं, ये जो मरे हुए जानवर होते हैं उनकी जो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है रियल हेल्थ केयर इन उर्दू। मैं आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी बातें जो कि आप नहीं जानते चिकन ब्रायलर के मुतल्लिक। तो यहाँ पे आप इसका थंबनेल पढ़ सकते हैं कि इसका टाइटल पढ़ सकते हैं, चिकन ब्रायलर खाने के ऐसे नुकसानात जो आप नहीं जानते। तो दोस्तों, आजकल हर बंदा जो है वो चिकन खाने पे लगा हुआ है, खा वो छोटा है या बड़ा है, बच्चा है, बूढ़ा है, सारे लोग चिकन को बड़े शौक़ से खाते हैं। और आजकल देखें कि हमारे माशरे में किस किस तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। हालांकि अगर हम 50 साल पीछे जाएं तो जो बीमारियां आजकल हैं वो पहले नहीं थी। पहले ब्लड प्रेशर का जो मर्ज़ था वो नहीं था, शुगर का मर्ज़ नहीं था। इस तरह कई एक बीमारियां हैं, टेंशन, डिप्रेशन, इस तरह के ये सारी जो चीज़ें हैं ये आज से 50-60 साल या 100 साल हम पीछे चले जाएं तो ये चीज़ें नहीं थी। तो दरअसल ये किस तरह से ये बीमारियां पैदा होती हैं दोस्तों, ये हमारे आदात व अतवार और हमारी ग़ज़ा जिस तरह की होती है उसी तरह से हमारी जो आदात बनती हैं उसी